Okay, friends, how are you? Obviously, in this chapter number 6, EMI electromagnetic induction, you know that very well. We have discussed total 9 parts. And if you observe very carefully, ninth part, it was associated with pure JEE NEET. We would like to conduct more lecture, particularly for EMI JEE NEET point of view. यानी कि पार्ट 10, पार्ट 11 अपन लोग और डिस्कस करने वाले हैं. मगर दोस्तों आज का लेक्चर है वो अपन लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग JEE नीट का टेस्ट लेते हैं उसके बाद उसका सीधा एक सॉल्यूशन का लेक्चर होता है. सो बेहतरीन 25 क्वेश्चंस EMI रिलेटेड हमने डिस्कस किए लास्ट टेस्ट में. मोस्ट टाइम की टेस्ट 25 क्वेश्चंस थे और अब ये 25 क्वेश्चंस का अपन लोग टर्न बाय टर्न सॉल्यूशन देखेंगे. So today's lecture JEE NEET, this is paper number 2 for chapter number 6 EMI. So we would like to think about paper number 2 solution. So friends, be alert, think about logic of each and every question. कुछ questions वाकई based है and all questions are very IMP. So start with the first question. We would like to derive dimensional formula for magnetic flux. What's the formula of magnetic flux? Magnetic flux phi is equal to A into B. You know that very well. A into B. A is the area, B magnetic field. You have idea about unit of area. It is meter square. But how can we obtain dimensional formula for magnetic field? So there is a formula, chapter number 4. You know that very well. Chapter number 4. Part 2. What is the formula of the force acting on any current carrying wire which is placed in magnetic field B? So it can be given by equation F is equal to ILB, you can see. So from this equation we can make B in the form of subject. So B is equal to F upon IL. So instead of B we can put F upon IL. Now be alert. So unit of flux is equal to, what is the unit of area? Meter square. What is the unit of force? Newton. Current एम्पियर. लेंथ का यूनिट होगा मीटर. मीटर मीटर कैंसर. There is a Newton meter. So this is the most IMP unit. Newton meter per ampere. Don't forget A for ampere. This A not representing area. Newton meter. Anybody? Newton meter indicates torque, energy. So here this is energy. So energy per unit current also lead towards, you can see that, flux. So what is the dimensional formula for flux? What is the dimensional formula for energy? M1 L2 T minus 2. एम्पियर का अपन लोग जानते A1. So M1 L2 T minus 2 A minus 1. This is the answer of question number 1. This is the dimensional formula for magnetic flux. दोस्तों ये डायमेंशनल फॉर्मूला की कहानी हमने बहुत साल पहले यानी स्टैंडर्ड 11 में देखा हुआ है. नाउ यू वुड लाइक टू थिंक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2. यू कैन सी इन क्वेश्चन नंबर 2 देयर इज अ फ्लक्स गिवन 6t square minus 5t plus y. Magnetic flux associated with coil is given in the form of function of time. We would like to find induced current. आपने देखा है क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस किया है. So induced current at 0.25 second. So current I is equal to epsilon by R. Epsilon is the induced EMF. Resistance already given, don't worry. Now how can you find induced EMF? So as per Faraday's law, induced EMF minus d phi by dt. Differentiation of flux start minus sign for Lenz law. 6t square का differentiation 2t, 5t का differentiation 1, 1 का differentiation 0 because of constant. So 6 to the 12. So I can write 12t minus 5. But we would like to find current at 0.25 second. So set up by a t 0.25 minus 5. So it is 3 minus 5. That means plus 2 because minus minus plus 2. So this is the induced EMF plus 2 volt. Now friends, this is the formula of current. Just set up the value. EMF 2 volt, resistance already given, I think 10 ohm. Set up the values and you can get answer 0.2 ampere. This is your question number 2, and where you can see the famous and very important question
In most of question papers, you know that very well. This type of question always appear. So be alert. Now we have to think about third number question. Third number question very important. Here one data is given. We would like to think about it. A magnet is brought near a coil in a two ways, rapidly or slowly. Then what upon it the induced charge? Suppose if you think about the relative motion between coil and magnet is very fast or very slow, then you can see that velocity plays very important role. But here we have to think about induced charge. So what's the formula of induced charge? Masterpiece. ये भी हम लोग जानते हैं, धूम मचाता है. So delta Q is equal to delta phi by R. In this equation, tell me, is there any velocity? No. So induced charge is independent of velocity. That means if you move magnet or coil very fast or very slow, it doesn't affect charge. So charge is not affected. Why charge is not affected? Is it is independent of speed. You can see. So this is the answer. Third question. Answer you can see that what happen remains constant. That means third number का option होगा. You can see equal in both the cases. Okay, question number 4. The induced EMF in a coil doesn't depend on four options given. Induced EMF in a coil doesn't depend on number 1, the number of turns in the coil, the rate of change of magnetic flux, resistance, and the time of rotation. Obviously, this is the formula of induced EMF as per Faraday's law. तो आप जानते हो इसमें rate of change of current आ जाए, सब कुछ आ जाए. Only one you can see the quantity is not available, and it is the resistance. So keep in mind, induced EMF is not, you can see, they depend upon, or it is independent of resistance R. So question number 4 का option होगा for the resistance of the circuit. Now question number 5 very interesting. You can see the 5th number. Here a coil having 500 turns, number of turns given, area given, this quantity is given, number of turns, area, magnetic field, angular speed omega, and the resistance. Very important data सुनना बराबर. And the coil has a resistance of 5 ohm. What is the resistance coil? 5 ohm. But the induced EMF is applied to an, you can see the external resistance of 10 ohm, and the peak current through the resistance is blank. Peak current, underline this word. If you are solve this question, or if you are solving this question, then what is the most important word? Peak current or peak value. Exactly this type of word is used in chapter number 7. We will use this, don't worry. But peak current, that means the maximum value of current. From today, what do you mean by peak value of current? Peak current, that means the maximum current. So maximum current is equal to maximum induced EMF upon resistance. So I max is equal to epsilon max upon R. Epsilon. So what is the, you can see that maximum induced EMF for the rotation of coil. Check the concept of AC generator. NAB omega. याद करो. Armature is rotating between two giant magnets. Then induced EMF associated with this coil is given by equation NAB omega sin omega t. याद आया? But here maximum, so sin omega t 1. This is the formula of maximum induced EMF. So I max is equal to NAB upon NAB omega upon R. ये चिकना केस, इधर लोग फिसलते हैं, इधर आपको पूछा है रेजिस्टेंस, but we would like to think about current through 10 ohm resistor. So instead of R, we have to consider here 10 ohm, not 5 ohm, don't forget. So N given, A given, B given, omega given, and R also given, but two values of R. Here we have to consider 10 ohm. Set up the values, simplify, you will get answer here 3.5 ampere. So this is the question number 5th. Very interesting 5 questions we have discussed. Analyze friend this 5 question, and then we'll move towards the next one.
Okay, friends, so now we would like to think about the next question number 6, 7, 8, 9. But you can see all questions are very IMP. तो आपने ये 25 क्वेश्चन का जब एग्जाम दिया होगा तब काफ़ी टाइम पे कुछ स्टूडेंट्स अपने अपने मुताबिक लॉजिक अप्लाई करते हैं. नो प्रॉब्लम. इम्पोर्टेंट चीज पेपर देने से भी ज़्यादा है उसका सॉल्यूशन. तो ये जब सॉल्यूशन आए तब देखो आपने उस टाइम पे क्या कॉन्सेप्ट सोचा था और अभी एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई हो रहा है. सो फ्रेंड्स, कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड एंड एज यूजुअल यू नो दैट वेरी वेल. मैं हर बार कहता हूँ कि JEE नीट का एक ज तोड़ है, वो है कोई भी क्वेश्चन पेपर के देने के बाद उसका सॉल्यूशन बराबर एनालिसिस करो और वापस वो 25 क्वेश्चन सोल्व करो. अब आप भले सॉल्यूशन एनालिसिस करने के बाद सोल्व करो, आपका लॉजिक है वो आपका दिमाग बताएगा कि इधर इस तरह का सोच है और एप्लीकेशन है. सो 25 क्वेश्चन वापस सोल्व करो. जो क्वेश्चन आपने अपने दिल से सोल्व किए, दिमाग से सोल्व किए हैं और वो सही हो गए हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जो रॉन्ग है उसको वापस अच्छी तरह देखो. नाउ वी वुड लाइक टू थिंक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6. When the number of turns in a solenoid are double without any change in the length of the solenoid, its self-inductance becomes blank. So we start with the question number 6. What is the, we can say that self-inductance for solenoid? Anybody? You know that very well. It is given by equation mu naught n square A upon L. Ultimately, I can write self-inductance for very long solenoid is directly proportional to n square. So here number of turns becomes, you know that very well, half. So you can see that here, suppose initially inductance L1 is directly proportional to n1 square, but now n2 simply 2 times of n1, because here already double this type of word I think use. Yes. So what's the new inductance? So n2 is directly proportional to n2 square. So n2 is directly proportional to 2n1 the whole square, because n2 is equal to 2n1. In short, L2 4n1 square, n1 square L1. So L2 simply becomes 4 times of initial inductance. So answer आएगा 4 times. Nothing you can see. Question number 7. ये जालिम शॉर्टकट है, याद रखना, काफी जगह यूज होने वाला है. क्वेश्चन नंबर 7. कोइल ऑफ रेजिस्टेंस 20 ohm and inductance phi is then connected to 100 volt battery. Then what is the energy stored in inductor? Tell me the formula of energy stored in inductor. It is given by equation 1/2 Li square. You know that 1/2 Li square. But here what happened? You target to find this energy. L is given, but no idea about current. If you check the data, so instead of current, additional information given. A coil of resistance 20 ohm, resistance given, and supply voltage 100 volt given. So no problem. What is the general formula of current? It is epsilon by R. So energy stored in inductor, U is equal to half into L instead of I. Now we can apply epsilon by R the whole square. You can see. So U is equal to 1/2. What is the value of L? L is given 5, epsilon given 100, resistance given 20 the whole square, and if you simplify, then answer should be 62.5 joule. You can see this is the answer of the question number 7. Very interesting and IMP question, friends, so just concentration required. This is your question number 7. What happened here? I is given in, we can say that little bit in complicated way. Now we would like to think about question number 8. 8 also very IMP. देखो question 8 supreme. What is the formula of energy density? Here they use one word. The magnetic energy stored in a long solenoid. You target to find magnetic energy. Ready? But what's the formula of magnetic energy density? Rho B याद करो. It is B square by 2 mu naught. याद है मैंने बोला था जबरदस्त. दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 10. सुपर.
So energy density, what is the meaning of energy density? It is energy upon volume is equal to b square by 2 mu naught. So अपने को एनर्जी का सब्जेक्ट फॉर्म में लाना है. So energy is equal to b square by 2 mu naught into volume. And for very long solenoid, what is the volume? Area into length. So this is the energy stored in this very long solenoid. And your option you can see that b square al upon 2 mu naught. That means last option obviously becomes the right answer for question number 8. देखो दम है, दम इसलिए क्योंकि पैरामीटर को पकड़ना है, वॉल्यूम इससे भेज के एनर्जी को सब्जेक्ट फॉर्म में, और ऐसे शॉर्टकट्स आपके दिमाग में होने चाहिए. डोंट फॉरगेट. So these all shortcuts are very IMP. Now we would like to think about one more question. It is, you know that very well, question number 9. So now we would like to think about question number 9. Very interesting question. तो 9th नंबर अपन लोग जिसे भी सकते हैं सॉल्व करते हैं. ओके, जस्ट अ मिनट. ओके, so to solve 9 we have required some space. So no doubt we start here, then we'll check it what happened. So question number 9, you can see that the radius of a circular loop, there is a circular loop. What is the radius? Its radius r. ये मस्त क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट में है, डोंट फॉरगेट. थोड़ा इधर उधर ओके. मोस्ट आईएमपी, इवन गुजरात बोर्ड का ओल्ड सिलेबस में ये न्यूमेरिकल और ये क्वेश्चन एक इलस्ट्रेशन था. सुपर. तो याद रखना, रेडियस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल प्लेस्ड इन अ परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज increasing at a constant rate of r naught. So here radius continuously changes. That means the change in radius with respect to time, it is r naught. This is called rate of change of radius. Increase, और ये लोब की रेडियस है, सडनली इतना यूं ऐसे बढ़ने लगता है. So the rate of change of radius is already given r naught. So what's your target? Your target, if any instant the radius of the loop is smaller, then EMF induced in the loop at that instant will be. Suppose we would like to find induced EMF at given time t and at that time radius है r. तो no problem. Important चीज है rate of change of radius. तो induced EMF का फॉर्मूला देखो दोस्तों. induced EMF epsilon is equal to d phi by dt. फैराडेस लॉ, मैंने बोला पहले दिन से मैं बोल रहा हूँ, ये बंदा आपको शांति से नहीं रहने देगा, ये हर बार अप्लाई होने वाला है. अब आया फ्लक्स. तो फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स? फ्लक्स एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड. यू कैन सी एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड. बट व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सर्कुलर रीजन हैविंग रेडियस r? सो d dt एरिया ऑलरेडी पाई r स्क्वायर इनटू b. यू कैन सी पाई r स्क्वायर इनटू b. ओके, now pi r square. Now we have to think about differentiation of this portion. If you observe very carefully, then pi and b both are constant. So out of differentiation, so what is the differentiation of r square? Anybody? 2r. चलो इधर लिखा है b, तो b के ऊपर से b ग्रुप वाले जरा चौकन्ने हो जाए, यानी नीट वाले लोग जरा देखें, क्योंकि नीट वालों को डिफरेंशिएशन का ये जो कॉन्सेप्ट है वो काफी टाइम पे क्लियर नहीं है. जरा देखो, इधर हमने डिफरेंशिएशन किया है r स्क्वायर का. वंस अगेन 2r इज द डिफरेंशिएशन ऑफ r स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ये जो 2r है वो डिफरेंशिएशन है r का स्क्वायर का. इसलिए मैंने बोला बेस और पावर आए तब हम जब मोस्ट ऑफ और जब जनरली जिसे कह सकते हैं पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं. इधर ये डिफरेंशिएशन है 2r, वो ये r का जो पावर 2 है उसका डिफरेंशिएशन है. इसलिए जो ये बेसिकली बेस स्मॉल r है वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि आपने जो किया ये 2r, आपने जो 2r जो आंसर लाया वो तो मेरे पावर 2 का डिफरेंशिएशन है. अभी मेरा तो डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो अपने को r का डिफरेंशिएशन करना पड़े, इसको कहते हैं चेन रूल. अगेन 2r इज द डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर ऑफ r. We have to think about differentiation of r also with respect to time. It is called chain rule. So now I can write 2 pi dr. And what is the dr by dt? It is r naught. So this is your answer. Check it. This is the answer. Pi b 2r r naught. And if there is minus sign present, so we can also use minus sign.
बिकॉज ऑफ लेंस नो, नो डाउट अबाउट इट, तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बट दिस इज द आंसर यू कैन सी. सो क्वेश्चन नंबर 9 and there is answer of I can say fourth number minus 2b pi r naught into r. Superb. ये rate of change of वाला फंडा याद रखना है. So friends, we have discussed 7, 8, 9 on 6 number. Analyze it and then we move towards the next. Okay, so now one more. So now we would like to think about question number 10. So concentration required. All questions you know that very well, very important, and this 25 question if you solve, then I can say almost each and every concept of chapter number 6 obviously clear. बी ग्रुप वाले खास, ए ग्रुप वालों के लिए चांस है इंजीनियरिंग, जे डबल के ऑप्शन में उसके पास लोकल कॉलेजेस है. बी ग्रुप वाले खास देखे, डॉक्टर बनने का जुनून हो तो जुनून डेली बढ़ाते जाओ, और ये सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल है. डोंट फॉरगेट, बहुत ही टाइम है आपके पास, क्योंकि लॉकडाउन सिचुएशन में घर पे बैठने का है, तो यूज दिस ऑल वी कैन से दैट इंपॉर्टेंट मोमेंट्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10, there is a disc or copper disc of radius 0.1 meter. This type of disc is given. This is question number 10. Disc is given having radius 0.1 meter, is rotated about its center and with 10 revolution per second, like in this way. So here omega 10 revolution per second. This is not omega, but I can say frequency, because number of revolution per second gives idea about frequency. Okay, then what's your target? Magnetic field is given 0.1 question. Then your target to find EMF induced across the radius of the disc. So ये अपने को फाइंड करना है, और ये अपन लोग इसका शॉर्टकट जानते हैं. So induced EMF across these two ends, it is half b omega r square. ये तो आपके पास शॉर्टकट होना ही चाहिए. So here half b omega is not given, frequency given, so omega की जगह 2 pi r, ये फर्क देखते हैं, and all values with you. So now we would like to set up the values. Half b 0.1, r already 0.1 obviously, and here 2 pi f given 10, so 20 pi r. If you simplify, then obviously answer pi by 100 volt. That's the answer of this question number 10. Superb. Once again शॉर्टकट चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मुझे राइट टाइम पे यूज करो. नाउ वी वुड लाइक टू थिंक अबाउट क्वेश्चन नंबर 11. 11 नंबर हटके है, सो जरा देखना बराबर. यू कैन सी देयर इज अ फ्रेम एंड दिस टाइप ऑफ फ्रेम इज गिवन, जस्ट चेक इट. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फ्रेम? CDEF, and there is a rod. This rod performs motion or sliding over these two arms with speed v. Okay, then what's your target? सब कुछ दिया है आपको, सिर्फ और सिर्फ फाइंड करना है. your target to find power, the power span in this process. इसका मैंने आपको most important theoretical portion सिखाया है. whenever this rod slides, then you know that very well one secret force is acting on it, and to overcome this problem of, I can say that secret force, it is called Lenz's force. So to balance this Lenz's force, we have to apply same magnitude force in opposite direction of Lenz's force. Lenz's force ये डायरेक्शन में लगता हो तो हमें इस साइड फोर्स अप्लाई करना पड़े. Because of this force there is some work done. Because of this work done there is a power. This is called mechanical power. And what's the formula of this mechanical power? It is F into V. और F का फॉर्मूला हमने दिया था BIL, I का फॉर्मूला एप्सिलॉन बाय आर, मगर मैंने इसका शॉर्टकट आपको दिया हुआ है पावर का b स्क्वायर l स्क्वायर v स्क्वायर बाय r. जस्ट चेक इट, दिस इज द मास्टरपीस. ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ है. चेक दिस, यू कैन सी द टॉपिक, आई थिंक पार्ट नंबर 4, 5 और 3, 4, 5 मोशनल EMF रिलेटेड. हियर b गिवन, l गिवन, v गिवन, r गिवन. सेट अप द वैल्यूज. आंसर 2 किलोवाट. दैट्स द आंसर. वापस देखो, एक की जगह अपन लोग रखेंगे BIL,
फिर आई की जगह लिखेंगे एप्सिलॉन बाय आर एल, और एप्सिलॉन अपन लोग जानते हैं बी वी एल, यू कैन सी बी वी एल इंटू एल अपॉन आर, तो ये बन गया बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी बाय आर। कोई बोले आपने तो वी स्क्वेयर लिखा है, अरे ये भी बाकी है ना, अभी ये भी मल्टीप्लाई होगा, डोंट वरी। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, शॉर्टकट दिमाग में रखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर इस पूरे पेपर में हीरो है, और इसमें लोगों का दिमाग हो जाता है जीरो। सो वी वुड लाइक टू सॉल्व इट। दिस इज द, यू कैन सी दैट द मास्टरपीस। तो ये पहला पड़ाव के बाद अब यहाँ से काफी सारे अच्छे क्वेश्चंस है। सो फ्रेंड्स बी अलर्ट। नाउ देयर इज अ bob of mass m and conducting wire of length L swinging under gravity through an angle of 2 theta. The Earth's magnetic field component in the direction of perpendicular to swing, it is B. The maximum potential difference induced across the pendulum is blank. Okay, first of all, basic structure of pendulum. You know that this is pendulum. तो ये 2 थीटा, ये टोटल 2 थीटा इधर ऐसे, मगर अपन लोग को हियर वी हैव टू थिंक अबाउट थीटा, क्योंकि ये थीटा तो ये पोर्शन 2 ओनली थीटा, ये टोटल 2 थीटा होगा, ये थीटा। और ये जिसे कह सकते हैं कि बहुत ही जाना पहचाना डायग्राम है। कोई बोले हाँ ऐसा डायग्राम हमने देखा है कहाँ पे, अपन लोग बोले कहाँ पे देखा है, हाँ आपने जो पेपर लिया अभी उसमें, छगन वो तो था ही, ये डायग्राम वो एक और जगह पे है। You know that chapter number, anybody? 14? Yes, 14 standard 11th SHM, simple pendulum। तो ये जिसे कह सकते हैं हाइट है h, you know that very well, this height is already given h, the length of this pendulum is given l। ओके, डेटा देख लिया, ऑप्शन जरा देख लो, क्योंकि कभी कभार काफी लोग है वो डायरेक्ट शुरू हो जाते हैं। मैं हर बार कहता हूँ JEE नीट के पेपर में, पेपर का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जो भी लॉजिक अप्लाई करो उसके लिए पहले एक बार अच्छी तरह ऑप्शंस भी देख लो। ऑप्शन में देखो काफी साइन थीटा ऐसा सब उड़ रहा है, मतलब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ जाना है। तो अब देखो एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा, दिस इज योर, जिसे कह सकते हैं कि रेफरेंस पॉइंट, एंड दिस एंटायर motion is considered like this one. This is the rotational motion. So what happened here, this bob performs rotational motion like in this way, and whenever this rotational motion is performed, that means this pendulum has some kinetic energy, but as per law of conservation of energy, to move up to height h, whatever the rotational kinetic energy, it is equal to mgl 1 minus cos theta। ये शॉर्टकट है, अच्छी तरह जानते हो तो ये शॉर्टकट में सीधा लिख रहा हूं। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड 11 का वैल्यू। स्टैंडर्ड 11 लोग ऐसे करने की जरूरत नहीं करते हैं, मगर इसके पीछे का राज ये है, याद करना बराबर, एनर्जी वर्क डन, whatever the work is needed, it is available in the form of kinetic energy, but this is the rotational motion, so we have converted here, or we have considered rotational kinetic energy, it is mgl 1 minus cos theta। देखो थीटा दिया, इसके लिए हमने डिस्कशन किया, दिस इज द मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला, इट इज 1/2 I ओमेगा स्क्वायर mgl 1 माइनस cos थीटा। आप डायरेक्ट भी वर्क डन का पॉइंट ले सकते हो, मगर मैं थोड़ा बेस बनाना चाहता हूं इसलिए। अब देखो डायरेक्ट भी अपन लोग आ जाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय I? इट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट मींस मास मल्टीप्लाई बाय distance from reference point. What is the, we can say, the distance of this bob or center of bob from the reference point, it is L into omega square mgl 1 minus cos theta। बी ग्रुप वाले जरा देखे चौक करना हो जाए, साइन थीटा का फॉर्मूला है, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला देखना बराबर, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। याद आया? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 माइनस cos 2 थीटा, सॉरी यस 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। ओके, तो इधर देखो थीटा, तो इधर डबल थीटा हुआ, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो cos 2 थीटा इधर, तो इसके ऊपर से अपन लोग cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखे। So what happened here, cos 2 theta, you can see that
sorry, 1 minus cos 2 theta, I can write 1 minus cos 2 theta is 2 sin square theta. Just check it. ये मैं बी ग्रुप वालों के लिए बोल रहा हूँ, ए ग्रुप वाले तो मैथ्स के खां है, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। आधे तो ए ग्रुप वाले ऐसे होते हैं जिसका वैल्यू मैथ्स का बी ग्रुप से भी ज्यादा ऐसा होता है, वो लोग भी खास देखे इधर 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। अपने केस में ऐसा है 1 माइनस कोस थीटा, जस्ट चेक इट, 1 माइनस कोस थीटा, तो इधर 2 थीटा का एंगल हाफ हो गया थीटा, तो अपना जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। इधर एंगल 2 थीटा का हो गया हाफ, तो इधर थीटा का भी एंगल हो जाए हाफ, थीटा बाय 2। सो इंस्टेड ऑफ 1 माइनस कोस थीटा I can use 2 sin square theta by 2. Why? Already here mathematical review given. तो बी ग्रुप वाले जरा देखे वो खास ये लिख ही ले, ऐसा हो तो कुछ लोग लिखते नहीं, जरा देखे। अब अपन लोग एम को अलविदा कर दे, एल को अलविदा कर दे, तो ओमेगा स्क्वायर इनटू एल इज इक्वल टू 2, और इधर also you can see that one more 2, so 2 sin square theta by 2. just check it. रेडी? अपन लोग अब टारगेट में जाते हैं, अपना टारगेट फाइंड करने का है व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला ये रोटेशनल मोशन के लिए क्या होता है 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। देखा, ये शॉर्टकट तो हम जानते हैं ना, ये रोड ही है समझो, ऐसे घूमे तो 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। सो योर टारगेट टू ऑब्टेन ओमेगा, इसीलिए हमने कहानी शुरू की। तो ओमेगा यहाँ से मिलेगा, यू कैन सी, सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 upon L sin square theta by 2. So omega is equal to 2 upon root L. Sorry, there is a G. There is a mistake. G. So I can write under root G by L sin theta by 2. क्यों sin को रूट में नहीं रखा? Because there is a square. तो ये मिल गया अपना ओमेगा. So we'll use here induced EMF 1/2 B. Instead of omega, I can write 2 root GL sin theta by 2 multiplied by L square, you can see. Okay, तो अब तो अपन लोग जानते हैं कि ये 2 कैंसल, सो एप्सिलॉन इज इक्वल टू बी, फिर अंडर रूट इधर देखो एल स्क्वायर है, तो अपन लोग इधर जिसे कह सकते हैं कि और पॉइंट टू पॉइंट देखे, अपने पास इधर एल स्क्वायर एल आ गया। ओके, एल एल कैंसिल, या एल स्क्वायर का अपन लोग रूट के अंदर डाल दे तो एल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा रूट जी एल साइन थीटा बाय 2। जस्ट चेक इट, दिस इज योर आंसर बी अंडर रूट एल जी साइन थीटा बाय 2। चेक करो, ऐसा आंसर आता है बी। ओके, जस्ट यू कैन सी दैट्स योर आंसर बी ओमेगा, सॉरी ओमेगा की वैल्यू हमने रख दी है, वरना बी ओमेगा एल स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू हमने रख दी है। सो इधर जो आंसर होगा बी एल साइन थीटा बाय 2 अंडर रूट जी एल, क्योंकि एल स्क्वायर इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ, एल एक एल इधर रख देता हूँ, एक एल है वो इधर आगे। ओके, दिस इज योर आंसर। अब एक एल जिसे कह सकते हैं इसके साथ कैंसिल होगा तो ऊपर रूट एल आ जाएगा। सो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर है 2 इज द राइट आंसर। सुपर। Once again, what happened here? You can see that this is one type of rod. This rod performs this type of rotational motion inside the magnetic field with angular speed omega. So what is the induced EMF? 1/2 B omega L square. Omega your requirement, but for this type of motion, you know that whatever the rotational kinetic energy, it is equal to mgl 1 minus cos theta. This is standard 11, most important concept. और ये दिया हुआ है. So 1/2 I omega square, rotational kinetic energy ml square. फिर ओमेगा सीधा शॉर्टकट भी बन सकता है, नो डाउट। और इसमें हमने 1 माइनस कोस थीटा का जादू किया। देखो ये जादू करने का रीजन, कोई बोले हमें कैसे पता चले कि ये सब करना है, ये आप रट्टे मार के आते हो, इसलिए आपको पता है कि 1 माइनस कोस 2 थीटा का 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो दोस्तों इसलिए मैंने बोला ऑप्शन, मेरे पास ऑप्शन ना हो तो मैं यहाँ से मैं भी अटक जाऊँ और मैं भी 1 माइनस कोस थीटा के फॉर्म में आगे ले जाऊँ, या ज्यादा से ज्यादा एक कन्वर्जन मेरे दिमाग में तो लिखो। तो ऑप्शन से वो आपको गाइड करेंगे कि किस तरह आपको मैथमेटिकल प्रोसेस और ऑपरेशन को आगे ले जाना है। तो ये मस्त क्वेश्चन है नंबर 12, यू हैव टू ऑब्जर्व इट। ऑब्वियसली नाउ यू वुड लाइक टू थिंक अबाउट क्वेश्चन नंबर 13 बट एनालाइज इट। सुपर, ये दमखम। ओके।
Okay, so now we would like to think about number next. ये हमने 12 क्वेश्चन सोल्व किए. नाउ वी वुड लाइक टू थिंक अबाउट क्वेश्चन नंबर 13, 14. ये सभी क्वेश्चन दमखम वाले हैं, नो डाउट, मगर ये जो 12 है उसका दमखम कुछ अलग ही था, क्योंकि उसमें थोड़ा बेस स्टैंडर्ड 11 का चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है अच्छा, तो बी ग्रुप वाले खास. ओके फ्रेंड्स, सो नाउ we start with the question number 14. Sorry, yes, 13 number. The uniform magnetic field exists in a region. It is given by question number 13. Here magnetic field given, it is 3I cap plus 4J cap plus 5K cap. This is the magnetic field. Inside this magnetic field there is a rod of length 5 meter. It is already arranged in the direction of y-axis. So length already 5J cap because of y-axis. ऐसे रखा है. And it moves in this direction with velocity 1 meter per second, but in the direction of x-axis. x यानी I cap. ये सब कुछ दिया हुआ है. ये क्वेश्चन वाकई जोरदार है. So what is the induced EMF in the rod? काफी लोग क्या करते हैं कि सर इसका फॉर्मूला हमारे दिमाग में है. कोई बोले कैसे, तो क्या फेंको, एप्सिलॉन इज इक्वल टू BVL. मगर ये आप देखो, ये वेक्टर फॉर्म है. तो दोस्तों मैं अब इसके कंसेप्ट क्लियर करवाता हूँ, देखना. ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है. EMF, व्हाट डू यू मीन बाय EMF? इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज. चैप्टर 3 में मैंने EMF को टर्मिनल वोल्टेज के कंसेप्ट क्लियर करवाए थे तब, प्लस चैप्टर 6 में भी मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट दिया हुआ था, origin of induced EMF तब. Okay, so what is the general formula of work done? It is force into displacement, the scalar product between force and displacement. Okay, so force into displacement F dot L. But F, what is the force acting on any charged particle? जैसे रोड जाएगा, ये हमने डिस्कस किया हुआ है, ये रोड है, ये रोड v जितनी वेलोसिटी से जा रहा है, तो चार्ज यहाँ से यहाँ है, यानी ये जितना डिस्प्लेस हुआ देखो, इसलिए डिस्प्लेसमेंट L लिए. मगर ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में से पास हो रहा हो, वो भी v जितनी वेलोसिटी के साथ, तो अपन लोग जानते हैं उसके ऊपर एक फोर्स लगता है. व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्ज्ड पार्टिकल पासिंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड विथ वेलोसिटी v इनटू दैट मींस डॉट L. देखना बराबर. सो नाउ q को इस साइड शिफ्ट करें, सो W by Q is equal to V cross B dot L. ये मास्टरपीस. एंड दिस इज योर इंड्यूस्ड EMF. तो ये अपना फॉर्मूला आया. नाउ वी वुड लाइक टू सेट अप द वैल्यू. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V? V is given I cap. So 1 I cap cross B already with you. It is 3I plus 4J plus 5K cap bracket complete dot L. L is the 5J cap. You can see that. Superb. ये डॉट प्रोडक्ट है, देखना ये थोड़ा माया जाल है क्रॉस और डॉट का. ओके, I cross I, just check it. I cross I 0, I cross J K. So it is plus 4K cap. ना पता चले कैसे, मैंने आपको एक मेथड दी है, I J K, I cross J, K cap, J cross K, I cap, K cross I, K cross I, J cap. But उल्टा I cross K minus J. You can see that I cross K minus J, I cross K minus J. So it is minus 5J dot 5J cap. ये क्रॉस प्रोडक्ट किया. अब इसका सिंप्लीफिकेशन करें तो K डॉट J तो 0 होता है, J डॉट J का ही आंसर आएगा, तो J डॉट J आंसर क्या होगा 1. तो आंसर 5 5 25. और अपन लोग माइनस साइन नहीं लेते, मैग्नीट्यूड लेते हैं. सो 25 वोल्ट इज द राइट आंसर. Masterpiece, friends. You can see that because of this region, and along with some you can see that तड़का of dot product and cross product, उसका तड़का स्कोर थोड़ा लाजवाब बना रहा है. ये मैं कोई रेसिपी नहीं बोल रहा, मगर ये बता रहा हूँ. डोंट वरी. Now we would like to think about the next point. Question number you can see 14. आप देख रहे हो हर एक क्वेश्चन में दम है. सो क्वेश्चन नंबर 14, ये इंटरेस्टिंग डायग्राम, और इसका हमने लास्ट पार्ट 9 में बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस की है.
तो काफी लोगों के कंसेप्ट इसके क्लियर है. देयर इज अ रजिस्टर R1, then there is a resistor R2 and inductor L1. You can see R1, then there is one more resistor. Okay, you can see R3. Sorry, there is a resistor R3 and there is inductor L2. EMF epsilon battery S. Okay, for this situation, if current passing through resistor R1 is I1, current passing through resistor R2 is I2, and current passing through resistor R3 is I3, then find the value of I1, I2, I3. But for which situation? डेटा बहुत ही अच्छा. और मैंने टॉपिक पे एक स्टेटमेंट यूज किया था. पार्ट 9 JEE नीट का लेक्चर देखना मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि रीड केयरफुली डेटा. हर एक बेटा डेटा रीड करे केयरफुली. तुम्हें डेटा देखो क्या पूछा है. योर टारगेट टू फाइंड व्हेन द स्विच इज क्लोज एंड ब्रैकेट में लिखा है t is equal to 0. t is equal to 0, then just after closing of switch. So for t is equal to 0, तो अपन लोग जानते हैं जैसे ही स्विच बंद हो तो t is equal to 0 टाइम पे इंडक्टर में से करंट पास होता है 0. यानी इंडक्टर सिंपली प्रोवाइड्स ओपन सर्किट. ये ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, तो ऑब्वियसली I2 बन जाएगा 0, I3 भी 0. ये पूरी कहानी भूल ही जाओ. तो यहाँ से करंट निकला और ये I1 और इधर आया, तो I1 क्या होगा. I1 यानी इंड्यूस्ड EMF अपॉन रेजिस्टेंस. तो I1 होगा एप्सिलॉन बाय R1. ये तो एक ओपन सर्किट हो जाएगी, याद करो. यानी यहाँ से करंट पास नहीं होगा, ये भी ओपन सर्किट हो जाए, यहाँ से भी करंट पास नहीं होगा, तो I2 I3 0. सो आंसर आएगा I1 I2 I3 लाइक दिस वन. क्वेश्चन नंबर 15. ओके, नाउ वी वुड लाइक टू थिंक अबाउट क्वेश्चन नंबर 15. So 15 also very interesting. There are, you can see the three diagrams given. So once again I would like to draw these three diagrams. तीन डायग्राम जरा देखते हैं अपन लोग. रजिस्टर, इंडक्टर, स्विच एंड रजिस्टर RLR. Okay, then there is another diagram. Switch, resistor, inductor. And there is third diagram. Third diagram also you can see that resistor, inductor, and there is a switch RLR. ओके, क्वेश्चन पूछा है इसके लिए करंट I1 है, इसके लिए I2 है और I3 है. सो थिंक अबाउट द रिलेशनशिप अमंग दिस थ्री करंट्स. I1 ज्यादा होगा, I2 ज्यादा होगा, I3 ज्यादा होगा, क्या किसका रिलेशनशिप है वो देखते हैं. मगर डेटा वापस डेटा रीड करो. जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड, अंडरलाइन दिस वर्ड इफ योर पेपर, यानी कि जस्ट चेक इट, मोस्ट IMP. तो दिस इज द केस वंस अगेन एट t is equal to 0 टाइम, यानी जस्ट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ स्विच एंड t is equal to 0 टाइम, t is equal to 0 टाइम, देन इंडक्टर प्रोवाइड्स ओपन सर्किट. तो ये ओपन सर्किट हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में I1 तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये ओपन का करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है. इसमें देखो जैसे ये बंद हो तो ये ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा, करंट सिर्फ ये रजिस्टर में से होगा. तो एप्सिलॉन अपॉन एक ज रजिस्टर है, देखो ये तो भूल जाएगा. अब इधर ये जिसे कह सकते हैं कि सिंपल ओपन हो जाएगा, ये इधर देखो, मगर तो ये दोनों रजिस्टर रहेंगे, करंट ऐसे घूम के ऐसे, तो इधर रजिस्टर होगा 2R. तो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी किसकी, ऑब्वियसली I2 की, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में 2 नहीं है. सो I2 ग्रेटर देन I3 and I3 greater than I1. That's your option. You can see that because of this reason. ये मैंने सिखाया, वापस देखो. t is equal to 0 टाइम पे इंडक्टर ओपन सर्किट, ओपन यानी इधर करंट पास नहीं होगा, ये ओपन हो जाए तो ये दोनों रजिस्टर फेल हो जाएंगे, एक रजिस्टर बचेगा. इधर भले ओपन हो जाए मगर ये दोनों रजिस्टर अभी भी सर्किट का पार्ट बने रहेंगे. तो ये मस्त क्वेश्चन नंबर 15 सुप्रीम. तो नंबर 16, एक एक क्वेश्चन में दम है. 16 नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग. अगेन देयर इज अ करंट I गिवन 5 + 16t. देखो इसमें जरा देखना, डेटा दिया है दोहराने के लिए 5 एम्पियर + 16 एम्पियर पर सेकंड. व्हाट डू यू मीन बाय एम्पियर पर सेकंड? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इनटू t. इस तरह का इक्वेशन दिया है, डोंट वरी. ओके, सो व्हाट्स योर टारगेट?
if induced EMF in the inductor is 5 millivolt, induced EMF 5 millivolt, then what is the inductance of the inductor? आपको L फाइंड करना है. So very easy, epsilon is equal to L di by dt. याद करो. तो epsilon है 5 into 10 raised to minus 3 because of 5 millivolt. L di by dt, इसका डिफरेंशिएशन लो. 5 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 16 होगा. So L होगा 5 into 10 raised to minus 3 divided by 16, and it is already 3.125 into 10 raised to minus 4 Henry. You can see that's your answer. Superb. इधर सिर्फ डराने के लिए 5 एम्पियर 16 t दिया है, डेटा बराबर रीड करना. So friends, we have discussed 13 to 16 all questions very IMP analyze, then we will move towards the remaining 9 questions. Okay, so now we would like to think about the question number next. 14 से शुरू किया, 13 से शुरू किया, 14, 15, 16. देखो सभी क्वेश्चन दमखम जबरदस्त. इसकी नोटबुक होनी चाहिए परफेक्ट. लास्ट टाइम में बस यही रिवाइज करना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन सभी टाइप के लॉजिक को क्लियर कर लेते हैं. सो नो प्रॉब्लम एट ऑल. नाउ फ्रेंड्स, वी हैव टू थिंक अबाउट नेक्स्ट वन वेरी IMP फॉर अस. अब एक और लेवल बढ़ाते आगे. हम लोगों ने बेहतरीन क्वेश्चन सोल्व किए. अप टू वी कैन से दैट 16, नाउ 17, 18, 19 और 20 तक जाने की कोशिश करें. So just concentration required. So here what happened, next question number 17. 17 number very easy in IMP. There is a diagram. This is very famous. You know that this type of circuit diagram given, and there is an inductor. What is the value of inductor? 5 millihenry. There is a battery of 12 volt. There is a resistance of 1 ohm. AB. Your target to find VB minus VA. Current passing through this circuit is 4 ampere, and whatever the current passing through inductor, it is increases. Current here increases at a rate of 10 raised to 3 per ampere second. So your target VB minus VA. ये मैंने बोला IIT 1997 का क्वेश्चन हमने सोल्व किया था. अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ. इधर पोटेंशियल VA. सो VA करंट अपने साथ साथ, तो माइनस रजिस्टर के लिए 4 into 1. याद आया. बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल तो -12. इस इंडक्टर में से करंट डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेस. करंट इंक्रीजेस, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर इज नेगेटिव. तो इसका PD अपन लोग जानते हैं di by dt, बट नेगेटिव बिकॉज ऑफ करंट इंक्रीजेस इज इक्वल टू VB. ओके, सो VA -4 -12. L की वैल्यू है 5 मिली और di by dt है 10 raised to 3. अलविदा दोस्तों. सो VA 12 4 16 21 VB. So VB minus VA is equal to -21 volt. That's your answer. Just check it. ये आंसर काफी लोगों ने इसमें लाए होंगे. ये बहुत ही फेमस, और इसकी भी प्रैक्टिस हमने बेहतरीन की है. 3-4 क्वेश्चन इससे सोल्व किए. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. So there is a diagram again. Superb. There is a resistor, inductor, resistor, then there is a switch, then there is a battery, again a resistor, R and L. Okay, what's the question? Okay, you target to find the ratio of initial current to final current. Initial यानी t is equal to 0. So 0 टाइम पे तो अपन लोग जानते क्या होगा. जैसे ही स्विच बंद करे, इसको कहते हैं जस्ट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ स्विच और इनिशियल स्टेट. देन इंडक्टर सिंपली प्रोवाइड्स ओपन सर्किट. ओपन सर्किट यानी ऐसे हो जाएगा. दैट मींस दिस रजिस्टर सिंपली बिकम्स मीनिंगलेस. सो इन दिस सिचुएशन व्हाट्स द करंट? I इनिशियल यानी मैं I0 कर देता हूँ इनिशियल यानी. So I0, it is, you can see that R are 2R, so epsilon upon 2R. R और R यही बचेगा. अब अपन लोग फाइंड करना चाहते हैं t is equal to infinite आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्विच. तो ये इंडक्टर सिंपली वायर के तौर पे काम करेगा. याद करो कॉन्सेप्ट, क्योंकि t is equal to infinite टाइम पे इंडक्टर में से जो करंट पास होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा. और कांस्टेंट करंट के साथ तो इंडक्टर का एक ज वर्ड है, घटा सावन की घटा.
यानी कोई लेना देना नहीं, सिंपल बिहेव्स लाइक अ वायर। तो ऐसी सिचुएशन में ये दोनों रजिस्टर पैरेलल यानी हाफ हो जाए, उसके साथ ये रजिस्टर सीरीज यानी R/2 प्लस R यानी 3R/2 हो जाए। और अपन लोग अब ये वैल्यू इसमें करंट के फॉर्म में देखें I इनफाइनाइट, तो एप्सिलॉन अपॉन रेजिस्टेंस होगा 3R/2 यानी 2 एप्सिलॉन बाई 3R। अब ये करंट और ये करंट कर लेते हैं रेशियो, सो I0 अपॉन I अल्फा, सो इट इज एप्सिलॉन अपॉन 2R अपॉन 2 एप्सिलॉन अपॉन 3R। R कैंसिल, ये कैंसिल, 3 गुलाटी मार के ऊपर, 2 गुलाटी मार के नीचे, सो 2 2 जा 4, दैट्स योर रेशियो। मास्टरपीस है भी जबरदस्त। मगर वापस कहानी एक ज, कब इंडक्टर ओपन बनेगा और कब इंडक्टर वायर, ये कहानी आपके पास होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, योर टारगेट टू फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। मगर ये जो डेटा है वो बहुत ही अच्छा है। देयर इज अ स्मॉल स्क्वायर लूप एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। देखो करंट पास हो रहा है सर्कुलर लूप में, तो फ्लक्स का भी इनर लूप में, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है फ्लक्स अपॉन करंट। फ्लक्स इसको मैं कह देता हूँ लूप नंबर 1 2, तो फ्लक्स 1 करंट I2। देखो करंट पास हो रहा है 2 में से, फ्लक्स एसोसिएट हो रहा है 1 में। फ्लक्स का फॉर्मूला एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड A1B2। ये B2 का पता चला, ये हमने कितनी बार बोला, चिकना केस। इनर लूप में फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है। प्रोड्यूस कौन कर रहा है, सेकंड लूप, तो B2। मगर ये लूप है सर्कल और ये सेंटर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ करंट कैरिंग लूप एट द सेंटर। तो मैं देखो शुरू करता हूँ। सबसे पहले ये जो स्क्वायर है उसका एरिया, तो इसका लेंथ दिया है स्मॉल एल, तो स्मॉल एल स्क्वायर हो जाए, स्क्वायर का एरिया एल स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बिकॉज ऑफ दिस लूप इट इज म्यू नॉट करंट अपॉन, करंट है I2 अपॉन 2 इंटू रेडियस, रेडियस दिया और अपॉन I2 है, I2 कैंसल, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट एल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर, अल्टीमेटली एल स्क्वायर अपॉन आर। ऐसा ही कुछ ऑप्शन दिया है, देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ लेंथ अपॉन आर। मास्टरपीस, ये भी जोरदार, और ये भी प्रैक्टिस हमने बहुत की है दोस्तों। तो ये भी आईएमपी क्वेश्चन नंबर 19। नंबर 20 नंबर के लिए मैं एक शॉर्टकट दूंगा क्योंकि बहुत ही इजी। मैंने आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ के पहले पार्ट में ही बहुत सारे शॉर्टकट दिए थे, मगर जब एंगल चेंज हो तब मैंने आपको ये शॉर्टकट दिया था, NAB cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 अपॉन डेल्टा टी। याद करो, ये शॉर्टकट इधर अप्लाई करेंगे। कैसे, देखो एप्सिलॉन इज इक्वल टू NAB, इधर एंगल 90 डिग्री पे लाने का है, शुरुआत दी है 0 डिग्री। चेक करो डेटा अच्छी तरह, 90 डिग्री 0 टू 90 डिग्री पे रोटेट कर रहे हैं। अब सभी वैल्यूज में आप देखो cos 90 तो 0 हो जाएगा, cos 0 1 माइनस, और इधर इंड्यूस्ड ईएमएफ में लेंस लॉ ले तो माइनस माइनस प्लस NAB अपॉन डेल्टा टी। इसमें वैल्यूज रख के सॉल्व करने का है, आंसर आएगा 0.02 वोल्ट। तो ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, सो जस्ट चेक इट। 20 नंबर बेस्ड ऑन शॉर्टकट, मगर इस सभी क्वेश्चन में ये तीनों 17 18 19 मास्टरपीस। एनालाइज फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट अबाउट इट। Okay, so now we would like to think about last 5 questions of this paper. बहुत ही मस्त पेपर है, मजा आया नो डाउट, ऐसा कह सकते हैं। कोई बोले वो आपको, हमें तो अगर मजा लेना पड़ेगा। दुनिया में सब जगह अपन लोग को मजा आए, जरूरी नहीं, मजा लेना पड़ेगा। और जो मजा नहीं लेता है उसको क्या सजा मिलती है, वो 12th पूरा होने के बाद बोगस रिजल्ट आता है। और जो भटके हुए लोग हैं उसको पूछो क्या है, पता चल जाएगा। तो मजा लो, है तो ठीक है, ना है तो मजबूरी में भी लो। मोस्ट इम्पोर्टेंट नाउ लास्ट you can see that 5 questions we would like to solve, and these 5 questions are also very IMP. So be ready about question number, you can see that 21. So if you read the data, the magnetic potential energy stored in a certain inductor is 25 millijoule. Question number 21, here magnetic energy stored in inductor is given by equation 1/2 Li square. You know that
U already given, it is 25 millijoule. Milli, कौन मिली वो नहीं, ये मिली 10⁻³ and your target to find inductance current already given. कितना करंट पास करते हैं तब इतनी एनर्जी 60 मिली एम्पियर. लो तो अब आपको 1/2 L फाइंड करना है 60 मिली एम्पियर. अब इसको सोल्व करना है तो वेरी गुड, ना आए तो इसका ऑप्शन है 13.89 हेनरी. दैट्स द आंसर, वेरी इजी. 22 नंबर, 21 में कोई दमखम नहीं है, इजी. 22 नंबर बहुत इंटरेस्टिंग. A wire loop is rotated in a magnetic field. The frequency of the change of direction of induced EMF is blank. It is already asked in NEET 2013. तो पहले तो देखो एसी जनरेटर का कंसेप्ट याद करो. एसी जनरेटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला याद करो. इट इज NAB ओमेगा sin ओमेगा t. साइन फंक्शन. So what is the sine function? This is sine function 1, 2. You can see like this is first cycle, second cycle. तो एक साइकिल में कितनी बार फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है? 1 2 पर साइकिल 2 टाइम्स. सो यू कैन सी आंसर आएगा, यू कैन सी ट्वाइस पर 1 रोटेशन. सो ट्वाइस पर रोटेशन, एक रोटेशन में फ्रीक्वेंसी 2 बार चेंज होगी बिकॉज ऑफ दिस रीजन. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. इधर आप 2πf भी लिख सकते हो, यानी और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. ये मस्त क्वेश्चन है. नाउ क्वेश्चन नंबर 23. ये हमने इधर सोल्व किया हुआ, मैंने बताया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट. ये तो नीट में भी पूछा और JEE का भी क्वेश्चन है, डोंट फॉरगेट. सो दिस टाइप ऑफ डायग्राम, दैट मींस द ग्राफ इज गिवन. दिस इज द ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस टाइम. check it. And there is a 4 and there is a 0.1. If a resistance of the circuit is given, what is the resistance? Resistance given 10 ohm, then what is the change in magnetic flux? तो अपन लोग जानते हैं करंट और टाइम है, तो चार्ज अपन लोग फाइंड कर लेंगे. तो आप देखो चार्ज का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं डेल्टा पाई बाय आर. सो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट मींस चार्ज मल्टीप्लाई बाय ये आर का मतलब रेजिस्टेंस. बट हाउ कैन यू फाइंड चार्ज? तो मैंने चार्ज का फॉर्मूला चैप्टर नंबर 3 में दिया था, देखो. और चार्ज मतलब इंटीग्रेशन ऑफ करंट. इंटीग्रेशन ऑलवेज लीड्स टुवर्ड्स एरिया. तो ये जो ग्राफ है करंट वर्सेस टाइम, ये जो एरिया कवर होता है वो देगा चार्ज. तो अपन लोग ये इक्वेशन में आगे बढ़े. डेल्टा 5, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल? सो हाफ इनटू 0.1 इनटू 4 मल्टीप्लाई बाय 10. यू कैन सी. ओके, all values with you. Now delta 5 you simplify, 2 5 and 5 4 are 2, no doubt 2 Weber. That's your answer. So this is the, you can see the changing magnetic flux. Check the option. Yes, 2 is the right answer. 2 is the right answer. Option number 2 also right answer. 24 number, friends. Now very interesting. So here question important है. There are two inductors given. L1 4 millihenry and L2 2 millihenry के 1. ओके, देयर इज अ मिस्टेक, 1 millihenry. जो मैं डेटा पढ़ रहा हूँ उसमें जरा ध्यान से सुनना. द करंट इन द टू कॉइल्स आर इंक्रीज्ड एट द सेम रेट. अंडरलाइन दिस वर्ड. रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज सेम रेट. देन योर टारगेट टू फाइंड L1 by L2. Sorry, your target to find I1 by I2. If I1 and I2 are simply the currents in the two coils. ओके, तो ऐसे न्यूमेरिकल में शुरुआत यहाँ से करते हैं, सेम रेट. तो एक तो मुझे पता चल गया कि di1 by dt is equal to di2 by dt, दोनों के लिए सेम. अब करंट का टाका भिड़ना है इंडक्टर के साथ, तो हो सकता है. पावर को याद करो. पावर का फॉर्मूला है एप्सिलॉन आई. तो पावर रिमेन कांस्टेंट हियर, यू नो दैट वेरी वेल. सो epsilon is inversely proportional to I और I is inversely proportional to epsilon. तो मैं ऐसा लिखूं I1 by I2, तो इधर आएगा epsilon 2 by epsilon 1. चेक करते जाओ. सो अपन लोग ऐसा हो तो यहाँ से शुरू करते हैं ताकि आपको पता चले. यू कैन सी here I is inversely proportional to epsilon, so I1 by I2 it is epsilon 2 by epsilon 1. but epsilon, that means L2 di2 by dt, epsilon 1 L1
di1/dt, मगर ये तो गेम तो सेम है तो कैंसिल, तो आंसर आया i1/i2 अपॉन L2/L1, ये रहा ना L2/L1, और L2/L1 यानी कि 1:4, दैट्स योर आंसर, यू कैन से 1:4। चेक करो सेकंड नंबर आंसर इसका, तो इसमें भी दम है। नाउ क्वेश्चन नंबर आता है लास्ट 25, इसमें अच्छे अच्छे स्टूडेंट से वो फर्स्ट जाते हैं। जस्ट चेक इट, ऐसा लूप दिया है, तो अपन लोग तो सर्कुलर लूप के रोटेशन के रिलेटेड देखे, या इसको अपन लोग देखे ये दोनों एंड्स की इफेक्टिव लेंथ, तो इसका मोशन के कारण जो ईएमएफ जनरेट होता है ऐसा होता है बीवीएल, वेरी इजी। मगर एल क्या लेना है, एल यानी इस एंड से लेकर इस एंड तक का ये इफेक्टिव डिस्टेंस, क्योंकि पीडी इसके अक्रॉस, तो ये तो डायमीटर है, तो बीवी मल्टीप्लाइड बाय 2r, दैट्स योर आंसर, यू कैन सी हियर एल का मतलब इफेक्टिव लेंथ था, क्योंकि पीडी इसके अक्रॉस होने वाला, तो यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स एंड इट इज ऑलरेडी 2r, masterpiece. So friends, you can see here we have discussed 25 supreme questions, and all 25 questions provide some clearance of your conceptual point or logical power. 25 के 25 क्वेश्चन वापस सॉल्व करो, दम लगाओ, अगला पेपर एक और लेंगे, और अब इस चैप्टर का पार्ट 9 तक हमने डिस्कस किया, 10 और देखेंगे, उसमें और जेडब्ल्यू ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ करंट देखेंगे, लेंस लॉ देखेंगे, और फिर अपन लोग नया चैप्टर के बारे में सोचेंगे। तो फ्रेंड्स जस्ट चेक इट, ओके, सो बी अलर्ट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर एंड complete this all 25 questions, okay, logically. Thanks.